सबसे पहली चीज जो पूरी दुनिया को नहीं पता है कि ओआर बनते कैसे हैं। सबके दिमाग में एक परसेप्शन है कि सुप्रीम कोर्ट है। बहुत स्ट्रेस मैनेजमेंट भी एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट चीज है। स्पोर्ट्स में तीनों बार्स मतलब ना बहुत ज्यादा एक्टिविटीज कराते हैं, मतलब क्योंकि उनको दिख रहा है एक वीकेंड पे कि हाँ बैडमिंटन टूर्नामेंट करा दिया, हॉकी करा दिया। स्पोर्ट्स जैसे आपने बोला एक इंटरैक्टिव वे है, वैसे कुछ एंगेजमेंट सेशंस भी रखने चाहिए क्योंकि नॉलेज शेयरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टाइम भी हो गया, थोड़ा रिलैक्सेशन भी हो गया और एक मीटिंग भी हो गई, सबसे मिलना भी हो जाता है। हो सकता है कुछ एवर्ड्स या कुछ नॉलेज जो कि अफोर्ड ना कर जाना खुद ही बिकॉज़ अगेन टेक्स मनी एंड टाइम। जो सीनियर लॉट ऑफ एवार्ड्स है वो खत्म हो जाता है, फिर नए एवार्ड्स होते हैं क्योंकि वो डेजिग्नेट हो रहे हैं। एज एन एडवोकेट तो मैं कहीं भी प्रैक्टिस कर सकता हूँ पूरे इंडिया में कहीं, बट एज एन एवार्ड तो सिर्फ मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता हूँ। पर मेरे लिए वो 200 एवार्ड, वो जो हुआ गया वो 200 एवार्ड है, हम 2500 की बात कर रहे हैं। Hello, sir. So thank you for giving time to have discussion on this issue. Thank you for having me here. I started this program or this channel with the purpose to share knowledge and to discuss on the problems that exist and how can we solve it through the process of law. जनरली सिर्फ सबके दिमाग में एक परसेप्शन है कि सुप्रीम कोर्ट है, और क्योंकि आप एवार है और आप मेजरली आपकी जो प्रैक्टिस है वो सुप्रीम कोर्ट है, तो सबसे पहली चीज जो पूरी दुनिया को नहीं पता है कि ओआर बनते कैसे हैं। तो सर फर्स्ट प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है, आप मतलब क्योंकि ये बहुत लोगों का ड्रीम है कि प्रैक्टिस करनी है सुप्रीम कोर्ट में, बट किसी को समझ ही नहीं आता कहाँ से प्रैक्टिस करें, और बहुत लोगों को तो यही नहीं पता है कि फाइलिंग करने के लिए एवार बनना मैंडेटरी है। तो जो नए लोग एवार्स बनना चाहते हैं या जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एवार्स है, तो उसका क्या प्रोसेस है? So there is a process कि first 4 years you have to practice as a lawyer, and after practicing for 4 years you have to submit a commencement certificate, and you have to take that certificate from a AWA who's 10 years of experience as an AWA. As an AWA for 10 years. As an AWA for 10 years, he has been at AWA for 10 years. You take that certificate from him that you have started commencement under him for practicing as an in the Supreme Court, and that certificate along with your letterhead you have to submit it for the exam with AOR. After completing your 1 year with that AOR, when you are working under him, it is then he gives you a final certificate that you have completed the training under him. After that 1 year of completion, then you again submit it. Okay. And once you submit it, then it will be a 5-year practice. You will be under 5 years of practice. So 4 years in the bar and 1 year before the Supreme Court. Once you have done that, then only you are eligible to give your exam for the AOR. So that process has to be followed. And as a counsel, I will always advise कि ये जो सर्टिफिकेट ऑफ कन्वेंशन से हम शुरू करते हैं सीनियर के या जो भी एवार के साथ काम करना, एवार के साथ ही बेसिकली काम करना, उसमें you have to work under him and you should work under him so that you get the entire thing, how Supreme Court works, how Supreme Court functions, how drafting is done, what are the arguments. Because lower court or high court में अगर practice किया, Supreme Court is a totally different world because facts नहीं होते वहाँ, law points ज़्यादा होते हैं. So you have to have that commencement and यानी 1 year full. अगर आपको करना है seriously करना है, then you have to work under it. After that, you have an exam that consists of 4 papers. Then you are, after completing that 1 year, then you are eligible to give the exam. Then you fill that form. Your form burning that you have 4 papers. One is practice and procedures of the Supreme. That's one book. Then there is drafting. Then there is leading cases, and there is professional ethics. These 4 papers होते हैं which you have to give, and once you clear, and in every paper you have to get minimum 50, and overall you have to have 60% to become an AWA. मतलब of all the papers the average should be 60, but in every paper you have to have 50. That's the threshold for being an AWA. Because recently only I saw that around 200 plus people have cleared the AOR examination. So first step is internship,
Basically, it's a sort of training It's a training program That's which why a we lawyer call it should. commencement Okay. and then completion. Because what I have seen when I have appeared before the Supreme Court, that we see that there are certain things which need to be included in the petition, but that are not there. But in a general manner, a lot of people have been uploading. Like for example, the Supreme Court has to pass a judgment recently wherein they say that with an appeal, which is a statutory appeal, has to come with a certified copy. So I think this is because this is not being followed as a practice. That is why the Supreme Court has to give such judgment. तो सर उसका रीजन यही हो सकता है कि बहुत लोग बिना उस चीज को एंड सर उसमें कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम तो नहीं है कि लोगों के पास ये ऑप्शन ही नहीं है कि उन लोगों को बहुत सारे लोग सपने सिर्फ इसी वजह से अधूरे रह जाते हैं टू बिकम एन एवार क्योंकि उनके पास कोई सीनियर नहीं है मतलब फॉर एग्जांपल आई नो यू तो आई कैन कम एंड आस्क यू फॉर कमेंसेंट सर्टिफिकेट एंड ट्रेनिंग अंडर यू बट जो लोग ऐसे हैं जो इज देयर एनी प्रोसेस और स्कीम जहाँ पे मेंटोरशिप ऑफर करते हैं सीनियर्स जो एवार्स है ऐसा कोई है प्रोग्राम बहुत सारे एवार्स ऑफिस हैं जो कि आपको अपने साथ रखते भी हैं यू कैन जॉइन एज जूनियर टू देम एंड यू कैन टेक दैट सर्टिफिकेट देयर इज नो बार एज सच कि वो नहीं देंगे बट नेचुरली a person will give you a certificate why because you will be working under it. Yes sir. And if you show that interest, I don't think so. He was there who will say कि नहीं नहीं मैं नहीं देता because I don't know he was. And all the it has changed. It has changed because they're all very very helpful. All the yes. are very very helpful. Say few of my friends have just completed 10 years. I have just completed 8 years because I did my examination pretty late, and there is a reason to that. So whosoever has completed, they are all willing to guide. But yeah, you have to work under them. You cannot just take the certificate, then roam around for 1 year and say, "Come and give me the completion." That will not happen. Yes, sir. Because if you're working and if you're trying to become an AOR, serious about the exams, then probably you have to give you 1 year to this. Because as you said, first exam is of rules and regulations of practice and procedures. So if the practice and procedures, even if I want to learn from the book, it would be difficult because I am a practicing advocate, so I know it. The things that we learned through books is one thing, but things that we learn in practical experience is another. So that is one of the reasons why a lot of people. So sir, once I become an AOR, now the second stage starts. That how do I, what all benefits do I have as an AOR? So in Supreme Court, an AOR can only do the filing. Yes. Drafting and filing. Yes. So you get in one apprenticeship because the rest of lawyers they will come to you for filing in the Supreme Court. That's the benefit that you get. And in AOR, once you become an AOR, you have a recognition. Yes. Secondly, then you don't call yourself just an advocate. You say, I am an advocate on record. That's a pride that we all AORs wear when they say that we are the advocate on record in the Supreme Court. Because it's an honor. Why? Because again, you are saying 200 people qualified this year. So you don't have to see 200 people qualified this year. You have to see the amount of people who participated or who gave that exam. The result was only less than 5%. Yes. The passing percentage is less than 5%. Oh. So the people who gave their exams, that's 5% people only qualified. So, so you think that it's a rosy which is the 200 people have qualified. Earlier times, there were about 50 people who used to qualify, 40 people who used to qualify because the people who used to give their exams were less. Now, there are 2,000 people, 2,500 people giving their exams, which is a good thing. Of course, we need more AORs right now. Because again, there's a dearth of AORs because just what we have a average of 2,500 AORs in the Supreme Court, which is way less than the amount of filing that happens in the Supreme Court. Because on average, if you see the record of filing, then at least 90,000 cases are filed every year. This is what we see because while we were going through, a list was released, the data was released by the Supreme Court, where they mentioned about the disposal. That's saying the pendency is pendency. No, so they how did the pendency was seen was the number of cases filed, the number of cases just already existing, and the number of cases disposed of. So when I subtracted the number of cases already exist, I added number of cases already existing, subtracted it from the disposal, then I can already. No, you don't have to go that far. You say Monday or Friday, it's a miscellaneous week.
Miscellaneous day means when you have all the fresh cases filed to be listed. That's always happens on a Monday and a Friday. That is one So, thing which so, lots of so people average it out that 60 to 65 cases each Before a court, day. each court, Yes. fresh matters that I'm talking about, and 17 courts. You take out the average, and that's every Monday and Friday. Friday. So you can take it, and I'm not including when you have holidays, then you have a miscellaneous week. Yeah. I am not including when you have summer vacation. I'm just saying just average out that Monday and Friday. So many cases are being filed. सर एक इम्पोर्टेंट चीज ये भी है कि बहुत हम लोग पूरे दिन काम करते हैं, आपने तो बोला, आपने भी और मैंने भी वो एक्सपीरियंस किया है कि हम लोग 1-2 बजे तक काम करते हैं। तो उसके बाद हम लोग इतना स्ट्रेस हो जाता है, क्लाइंट तो अपना जेल में है, उसको तो वो स्ट्रेस है कि मैं बाहर कब आऊंगा, हमें उससे ज्यादा स्ट्रेस होता है कि हम लोग कैसे, तो उस चीज को मैनेज करने के लिए आजकल मैं देख रहा हूँ कि कुछ इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, बट कैसे मैनेज करते हैं, आपने कैसे मैनेज किया था? हम लोग so not only Supreme Court bar or the Delhi High Court bar, even the Supreme Court Advocate Bar Record Association, we have started this sports facilities. This is High Court में तो various sports होते हैं, क्रिकेट भी होता है, पिकल बॉल भी होता है, अभी रिसेंट बहुत ज्यादा होता है, और which is so good with the all lawyers participate. वैसे ही सुप्रीम कोर्ट बार में भी होता है, बैडमिंटन टूर्नामेंट्स होते हैं, हाई क्रिकेट टूर्नामेंट्स होते हैं सारे। तो इस बार पहली बार सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ने क्रिकेट ऑर्गेनाइज किया था, ओनली फॉर A1s. ओके, एंड दैट ऑलवेज हैपन ऑन अ फ्राइडे, सैटरडे, संडे हो ना, इन द नाइट मैचेस होते थे, और 12 की टीम बनी, लीग्स बने, खेले, सारे A1s खेले। सो ये है कि बार एसोसिएशन ये देती है जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज पे हम लोग को जो इंटेलिजेंस दी है, हाँ, तो उससे एक आपको एक चेंज मिलता है, बैलेंस हो थोड़ा 2-3-4-5 घंटे का ऑफ हो गया फ्रॉम द फाइल्स, फाइल so फोकस that you have अकेला अपने एक्टिविटी हो गई बॉडी की, and then you're back to your work. So me, I have been now playing cricket and sports for like more than 14-15 years, and cricket is something that we have been playing. It is a national, मतलब it is not an official national sport, but अभी तो सर IPL भी स्टार्ट हो गया, तो सबको ये जल्दी होती है कि जल्दी जल्दी काम खत्म कर लेते हैं। देखना और खेलने में बहुत फर्क है, तो खेलने में भी बहुत मजा आता है। हाँ, ऑब्वियसली, क्योंकि मतलब ये चीज है कि बहुत स्ट्रेस मैनेजमेंट भी एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट चीज है। स्पोर्ट्स में तीनों बार, मतलब मैंने कहा कि तीनों बार, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट बार हो, स्कोरा हो, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड या हाई कोर्ट, तीनों बहुत ज्यादा एक्टिविटीज कराते हैं, मतलब क्योंकि उनको एक वीकेंड पे भी आप बैडमिंटन टूर्नामेंट करा दिया, हॉकी करा दिया, पिकल बॉल करा दिया, क्रिकेट करा दिया, सो एंड ऑल द लॉयर्स आर पार्टिसिपेटिंग, सो उसकी वजह से और मोटिवेशन बढ़ा, एक मिलना, एक होता है कि सबको एक जेल भी कर रहे हैं, फ्री टाइम भी हो गया, थोड़ा रिलैक्सेशन भी हो गया, और एक अच्छा भी होता है, मीटिंग भी हो गया कि सबसे मिलना भी हो जाता है, और मतलब जो जूनियर है उनके लिए ये होता है इंटरेक्शन से बात कर पाएंगे, जजेस से बात कर पाएंगे, हाँ, जजेस से बात कर पाएंगे, वैसे तो नहीं कर सकते बात कर रहा बस करो, हाँ, कोर्ट पे वो एक फ्री ग्राउंड मिल गया, आप खेल भी सकते हो, बातें भी कर सकते हो, नहीं, और थोड़ा अगेन फोन से दूर है, फाइल से, क्योंकि हम सबके दिमाग में हमेशा वही चलता है कि जिसकी बेल है, उसकी ट्रांसफर पिटीशन है, उसका मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, जितना क्लाइंट नहीं सोचते उतना मैं सोचता हूं। ग्रेट इनिशिएटिव स्पोर्ट्स हमेशा करना चाहिए, स्पोर्ट्स इज ऑलवेज गुड लॉयर्स की लाइफ में। और मतलब सर स्पोर्ट्स जैसे आपने बोला कि इंटरैक्टिव वे है, वैसे कुछ एंगेजमेंट सेशंस भी रखने चाहिए, क्योंकि नॉलेज शेयरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो उसके लिए भी मेरे को लगता है कि कुछ सेशन, जैसे अब कुछ सेशंस ऑर्गेनाइज होते हैं, लेकिन वो सिर्फ इंडिविजुअल एफर्ट्स है, कोई इंसान कोशिश कर रहा है। अब तो इस बार स्कोरा ने और SCBA ने भी कॉन्फ्रेंसेस कराए, अभी हुआ है सर, अभी शायद से बैंगलोर, सुप्रीम कोर्ट का बैंगलोर में होगा, और AWS का गोवा में होगा, सो दैट लोकेशन भी सर अच्छी चूज की, लोकेशन भी अच्छी, बट आई एम नॉट ऑन द मतलब वहाँ भी हो सकता है कुछ AWS या कुछ लॉयर्स जो कि अफोर्ड ना कर पाए जाना उतनी दूर, बिकॉज अगेन टेक्स मनी एंड टाइम, वो सो वी कैन ऑर्गेनाइज समथिंग हियर आल्सो, वो भी एक इंटरेक्शन वे होगा कि वो ही कॉन्फ्रेंस को वहाँ भी करे और यहाँ भी करे, तो नॉलेज शेयरिंग तो कहीं भी आप यहाँ भी बुक करके दिल्ली NCR में करो, तो जितना आप अगर स्पोर्ट्स के साथ साथ अभी भी इंटरेक्शन करो, विच इज ऑल एक मीटिंग पॉइंट भी हो जाता है, सबसे मिलना हो जाता है, नॉलेज गैदरिंग हो जाती है, तो क्योंकि जितने AWRs है जनरली वो एलिवेट, मतलब वो डेजिग्नेट हो जाते हैं, सीनियर बन जाते हैं,
तो फिर वो जो सीनियर लॉट ऑफ एवार्ड्स है वो खत्म हो जाता है, फिर नए एवार्ड्स होते हैं, तो क्योंकि वही वो डेजिग्नेट हो रहे हैं। हम्म, जो जो लोग डेजिग्नेट हो रहे हैं वो दे कैन नॉट प्रैक्टिस एज एन एवार्ड, तो सब नए लॉयर्स हैं, नए एवार्ड्स हैं, तो कहीं ना कहीं वो इनिशिएटिव होना चाहिए मेरे वही ख्याल से। इंटरसेक्शन की बात करो कि वो अगर वो इस जूनियर नए वर्स गोवा नहीं जा सकते, बिकॉज अगेन इट इज कॉस्टिंग यू 40,000 भी हाँ। पड़े तो उनके लिए बहुत है, 50,000 पड़े तो बहुत है। हम्म, तो उनके लिए या बाकी लोग जिनको जो वहां ना जा पाए, उनके लिए हम यहाँ भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं एक साथ। हाँ, एक 2 दिन का सेमिनार हम यहाँ ऑर्गेनाइज करते हैं, हाँ। सैटरडे संडे, in a good hotel or a hall or whatever it is. So, All this म्यूजिक सब and this is always good कि ऑडिटोरियम्स है कोर्ट में, यहाँ सब जगह वहाँ भी बांटो, या ऑडिटोरियम में लो, या कहीं भी कहीं कहीं भी लो, यहाँ पे which जहाँ is मिल जाए। accessible to the lawyers हाँ। who can come and participate. Participation is the most important thing. एवार तो सर एवार के लिए तो मेरे ख्याल से, क्योंकि एवार का सारा एज एन एडवोकेट तो मैं कहीं भी प्रैक्टिस कर सकता हूँ पूरे इंडिया में कहीं, बट एज एन एवार तो सिर्फ मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता हूँ। पर मेरे लिए तो वो यही- 200 एयर, वो जो गोवा के वो 200 एयर है, हम 2500 की बात कर रहे हैं। हाँ वही क्या हो रहा तो है, 2500 का वो यहाँ होना चाहिए। 2300 के हमें यहाँ भी तो करना पड़ेगा कुछ। हाँ हम वो भी एक सोचते हैं कि वहां भी करेंगे, यहाँ भी करें, दोनों जगह करो, विच इज अगेन और- की नॉलेज और मीटिंग मीट एंड ग्रीट भी हो गई, हाँ। हम मिल भी रहे हैं, हम इंटरेक्ट भी कर रहे हैं, हम नॉलेज भी पा रहे हैं, और एक अच्छा टाइम भी कर रहे हैं। लीगल फर्टिलिटी हमारी एक फैमिली बहुत अच्छी है, सबसे यूनाइटेड फैमिली है, इस चीज के लिए तो कोई हमें फियर नहीं है कि हाँ। कोई सेपरेशन है, सब एक के साथ एक खड़े होते हैं। And हमने That's इसके the- बहुत एग्जांपल्स भी देखे हैं, इनफैक्ट बिफोर द कोर्ट आल्सो, इन एनी वे इफ देयर इज अ प्रॉब्लम टू अ सिंगल पर्सन, तो सब यूनाइटेड होके कोर्ट के सामने खड़े होते हैं। एंड कोर्ट्स हैव आल्सो बीन वेरी नाइस टू देयर लॉयर्स, सो ऑफ कोर्स यस, बट हाँ ये सब सारे इनिशिएटिव अगर उधर भी करो तो इधर भी करो, थोड़ा हाँ। सब जगह थोड़ा सबके step by यंगस्टर्स step। को हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखें कि एंड फर्स्ट जनरेशन को बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए हाँ। वो तो है। अब मैं हमेशा फर्स्ट जनरेशन स्ट्रेस करूँ कि जो सेकंड थर्ड जनरेशन को एस्टैब्लिशमेंट मिली हुई है, फर्स्ट जनरेशन एंड वी बीइंग फर्स्ट जनरेशन, हमें मालूम है कि पैसे की प्रॉब्लम, रहने की प्रॉब्लम, खाने की प्रॉब्लम, आपको पूरे दिन में सोचना भी कि मुझे पूरे इतने पैसे कमाने नहीं। एक और इशू है सर इसमें, कि अब क्योंकि एक रूल है कि आपको 10 किलोमीटर के अंदर अपना ऑफिस चाहिए, और इस 10 किलोमीटर के अंदर जितने ऑफिस हैं सब बहुत एक्सपेंसिव है, तो उसका ऑल्टरनेटिव था चेंबर्स। Then that proposal has I think gone, or we will make that proposal is कि at least उसको हम 10 किलोमीटर से हटा के दिल्ली एनसीआर कर दें, हाँ, दिल्ली एनसीआर क्योंकि मतलब मैं- या रेडियस थोड़ा या दिल्ली एनसीआर कर दें, मैं अभी बिकॉज इट इज नॉट फिजिबल कि एवरीवन विल गेट इन कि 10 किलोमीटर के रेडियस में सारे एवार्स को बन जाएगा। सो और वो उसमें का पॉइंट था कि 10 किलोमीटर इसलिए ताकि एवार असेसिबल हो हाँ, वहां से, अब उसको हम उस एमिट को बढ़वा सकते हैं, क्योंकि 10 किलोमीटर से ये- सारी पहुंच एरिया ये रिक्वेस्ट है कि दिल्ली एनसीआर पे भी हो जाए। पहले भी ये प्रपोजल किया था, उस प्रपोजल फिर से काम करके एटलीस्ट उसको दिल्ली एनसीआर कर दे तो बहुत बहुत ज्यादा युवा को, क्योंकि अब सब कुछ डिजिटल हो गया है। डिजिटल भी है, ऑनलाइन भी है, एंड एवरीथिंग इज, सो नाउ वी डोंट हैव टू गो टू द Registry. रजिस्ट्री टू फाइल द केस। आप ऑनलाइन फाइल करो, वो चेक करके आपको भेजा, एवरीथिंग इज ऑनलाइन, तो हम उस एमिट को बढ़ा सकते हैं। एंड प्लस वो जब आप लोग काम करेंगे तो फिर वो प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी कि रजिस्ट्री का जो इशू है कोऑर्डिनेशन का, वो भी सॉल्व होगा। सब सारे सॉल्व होने के लिए बैठ के होता है, एंड इट्स ऑलवेज बाय डायलॉग। हाँ, सॉल्व फर्स्ट द प्लानिंग हैज टू बी डन। हाँ। सोचना पड़ेगा किसी को उस चीज के लिए कि उसके लिए बैठना पड़ेगा, सब बैठ के डिस्कस करेंगे, हाँ। एक वे आउट निकलेगा। सो होता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है उसको। It's a step-by-step process, but yeah, of course, it's not impossible. It is possible, and we have to sit and क्योंकि ये बहुत सर, जो मेरे हिसाब से Yeah, नॉट एन आपने एवार्ड, Delhi NCR वो 10 किलोमीटर, which was a very valid point, and it should be discussed कि at least Delhi NCR तक उसको एम्बिट को बढ़ा दो, ताकि क्योंकि कोई अपने घर में भी ऑफिस बना सकता है, अगर वो नोएडा में रह रहा है, गुड़गांव में, तो अपना ऑफिस तो बना सकता है। सर access- क्योंकि यहाँ इस 10 किलोमीटर में अगर आपको ऑफिस बनाना है तो तो- लोग एक सिंगल ऑफिस की आपको 20,000 रुपए मिलेगा, मतलब इफ टॉकिंग अबाउट मॉनेटरी टर्म्स, तो 20,000 रुपए मतलब शायद से उसके लिए, फिर उसके बाद उसको क्लर्क भी रखना है, तो वो अपने साथ तो क्लर्क को नहीं बैठा लेगा, तो उसके लिए और 10,000 नहीं, रुपए बिल्कुल है, you're absolutely तो right. And वो- that rule was also a long time back. हाँ, that rule- उस टाइम भी वो that प्रॉब्लम्स rule- और सिचुएशंस भी अलग थी सर। नहीं, that- हाँ तो नहीं तो सब किसी का चेंबर एड्रेस दे देते हैं फॉर द सेक ऑफ हम्म, दिस, व्हिच इज अगेन रॉन्ग। अपना दो, ताकि आपको जो भी क्योंकि सारे कम्युनिकेशन से पहले लेटर से आते थे आप सारे कम्युनिकेशन मेल पे आपको हाँ। पब्लिसिटी मिलती है, तो नेचुरली हमें वो एफर्ट पढ़ाना चाहिए। क्योंकि मतलब इसको मैं रिलेट कर पा रहा हूँ। Absolutely, you're absolutely correct, and this was
This was something that not struck me. Thank you for reminding me that. कि इस पॉइंट पे हम लोग वो बात कर सकते हैं इस बारे में हाँ कि कि ये सब ये हाँ इशू है। और मतलब मैं अभी क्योंकि बहुत रिसेंटली मैं जब एक बार बना था तो ये पहला पॉइंट मुझे भी आया कि मुझे अभी 10 किलोमीटर में पैसे खर्च करके एक ऑफिस ढूंढना है। क्योंकि मतलब मैं भी बहुत रिसेंटली जो ये 200 नए या मतलब कुछ 200 प्लस जो नए वर्ड्स नो उनमें से एक मेरे सीनियर है, तो उनसे ही बात कर रहा था। तो उन्होंने ही ये चीज़ बताई कि अब हमें ये प्रोसेस करना है कि मुझे एक रजिस्टर्ड क्लर्क देना है, मुझे एक ऑफिस एड्रेस देना है जो 10 किलोमीटर की रेडियस में हो, और उसके बाद फिर हम लोग को एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो आपने बताया कि सर्टिफिकेट मिलेगा। तो वहीं से मुझे ये चीज़ें Absolutely, he's मिली। absolutely wrong, right, sorry. And वो पॉइंट पे हमें उसको डिस्कस करना भी चाहिए कि हाँ तो सर अब मैं वही मतलब कि मैं ये बात बन चुका हूँ, बट फिर प्रॉब्लम स्टार्ट होती है कि हाउ डज द वर्क स्टार्ट। क्योंकि इनिशियल डेज में जैसे आई जस्ट कंप्लीटेड 5 years इनटू प्रैक्टिस, तो मेरे पास भी मतलब दिस इज लिमिटेड वर्क, बट एज यू सेड कि यू आर रनिंग विद दिस ब्राइड दिस एवरीथिंग। बट जो नए लोग आते हैं, जो नए पॉइंट होते हैं, उनके पास केसेस कैसे आएंगे या क्या अप्रोच चुननी चाहिए टू डू इट बिफोर द कोर्ट, बिकॉज वी कैन नॉट सॉलिसिट। नहीं नहीं, of course you cannot solicit. So again, दिस लीगल प्रोफेशन में हम वर्ड टू माउथ से काम करते हैं। जी सर। हम तो कभी अपनी पब्लिसिटी करने की बात नहीं की कि वो बैनी है, तो हम वर्ड टू माउथ करते हैं। सो सपोज यू बिकम एन AOR, योर फ्रेंड्स विल नो, Yes. योर अदर पीपल नो दे बिकम एन AOR। सो केसेस अपने आप आने लगते हैं। वो आपको हाँ, आप सपोज में AOR बन गया तो जिनके केसेस होंगे वो आप ही को अप्रोच करेंगे ना। एवर्स की यही एक बेनिफिट है कि आपको सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए हर लॉयर को एक एवर को ही अप्रोच करना पड़ता है। सो दैट्स द बेनिफिट, यू विल गेट केस। ऐसा नहीं है कि आपको केसेस मिलेंगे। प्लस इतने सारे हाई कोर्ट्स हैं हर स्टेट में हैं। यू मस्ट बी नोइंग पीपल जहाँ पे हर स्टेट में होते हैं, जी। वहां से आपको काम आता ही आता है। Probably because 4 years you have already spent Spent in the profession. profession and 1 year in the Supreme Court, so people recognize you and slowly and steadily आपको आने लगता है, सारे केसेस आने लगते हैं हाँ, और धीरे धीरे आते हैं। ऑफ कोर्स केसेस कहीं भी जल्दी से आपको एक बार में नहीं आता unless and until you are not the second generation or first generation lawyers could be a problem। हमेशा okay. दिया which we are all at the bar addressing कि first generation lawyers को हम और क्या benefits दे सकते हैं। So हम लोग But- कोशिश करते रहते हैं। बट सर अभी अभी भी मतलब जब से ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, मतलब लास्ट 5-6 years से, जब से कोर्ट्स ने मोटिवेट करना स्टार्ट कर दिया है फर्स्ट जनरेशन को, तो बहुत सारे सीनियर्स इनफैक्ट सारे ही सीनियर्स ने असिस्ट करना स्टार्ट कर दिया, या ऐसी प्रोग्राम्स चलाते हैं, या ऐसे दे आर ऑलवेज अवेलेबल। फॉर एग्जांपल जैसे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट व्हेन कपिल सिब्बल से कंटेस्टेड इलेक्शन, तो एक सवाल था उनसे पूछा गया था, उनसे उनसे बोला गया आप यू आर अ वेरी गुड लीडर, वी हैव सीन यू एज अ लीडर इन बार एंड इन द एक्टिव पॉलिटिक्स, बट एक प्रॉब्लम था कि आप अवेलेबल रहेंगे फॉर द वो। तो उन्होंने सिर्फ एक ही इशू पे एड्रेस किया था कि आई एम अवेलेबल फॉर माई मेंबर्स, फॉर एवरी मेंबर आई एम अवेलेबल। तो ऐसी ही इज देयर एनी बॉडी विच एग्जिस्ट फॉर द एवार्स जो एवार्स के लिए काम करती है, या हाँ हाँ, सो एक हमारी सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन है। वो अलग है? वो अलग है, वो सुप्रीम कोर्ट से अलग है। सुप्रीम कोर्ट बार वो एसोसिएशन। बॉडी एवास की सारी दिक्कतें, एवास की सारी परेशानी और एवास के जो भी इश्यूज हैं वो सबको डील कर रही है। ओके। उसी में एक जैसे फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स हैं या जो फ्रेश एवास बने हैं, उनको जैसे दिक्कतें होती है से QVC पे करने के लिए, या उनको दिक्कत होती है कि अगर क्लाइंट से मीटिंग करनी हो तो उस सबके लिए एसोसिएशन जस्ट बिसाइड द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एक और एसोसिएशन है जो उसके ऑफिस है जो कि सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन कहलाती है। तो सर जैसे अब आपने मतलब यू हैव बीन इन सुप्रीम कोर्ट 8 साल से, तो आपने क्या क्या इश्यूज ऐसे आइडेंटिफाई किए हैं जो आपने जो फेस किए हो एज एन एओआर, या जो आपने देखा हो आपके दोस्तों ने, आपके जूनियर्स जो एओआर हाँ, सबसे बड़ी परेशानी हम लोगों के लिए ये केस लिस्टिंग सबसे बड़ी परेशानी। आपने फाइल कर दिया, पहले क्या होता था कि आपने केस फाइल किया तो वो फिजिकल फाइल भी होता था और वो दो दिन में चेक होके आपको ऑब्जेक्शन आ जाते थे, और फिर आपने ऑब्जेक्शन क्लियर किए तो वो एक टाइम बाउंड मैनर में हो जाता था, उससे विद इन वीक और सो 10 days आपका केस लग जाता था। अब क्या होने लगा है कि वो फाइल होता तो वो 4 दिन तो चेक नहीं होता, वो चेक होके आया तो आपने ऑब्जेक्शन क्लियर किया, आपने तुरंत ही ऑब्जेक्शन में लेके
और उसको रीचेक करने में वो अनदर 10 डेज लगे, और फिर उसको फिर नंबरिंग करके जब वो केस लिस्ट होगी तो यू हैव ऑलरेडी, इफ इट्स नॉट अर्जेंट, तो वो आप यू हैव ऑलरेडी लॉस्ट कुछ 21-22 दिन 23 दिन, तो महीना आपका चला गया, विच वॉज नॉट अर्लियर। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले एक हफ्ते से 10 दिन में वी यूज्ड टू टारगेट कि हमारा केस लग जाएगा अगर आपने सब कुछ नहीं कर दिया तो। वो एक क्यों, और वो क्यों, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ केसेस हैव इंक्रीज्ड, मे बी वी कैन नॉट ब्लेम द रजिस्ट्री फॉर दिस, पर वो एक इश्यू है जो हमें एड्रेस करना है। और अगर कोई केस लगा था, उसके नोटिस हो गए थे, और वो वापस वो केस लगता नहीं है, अगर जैसे बोलते हैं कि 3 वीक्स 4 वीक्स 5 वीक्स में लगना है, कभी कभी आपके केसेस नहीं लगते, तो हमें वो सब एड्रेस करने की, केस लगवाना, जल्दी जल्दी अर्जेंट केसेस लगवाना, लिस्टिंग लगवाना। आजकल एक और चीज हो गया है सुप्रीम कोर्ट में, सीक्वेंसिंग क्या होती है कि जैसे आपके किसी कोर्ट में 60 मैटर्स लगे, तो ऑनरेबल जजेस 10-20 पे हमें इन्फॉर्म करते हैं कि 10:30 से मैं केसेस 1 to 10 लूंगा, फिर 40 लूंगा, फिर 52 to 55 लूंगा, फिर मैं 30 लूंगा, फिर बाकी केस लूंगा, तो एक सीक्वेंसिंग है। आप एज लॉयर्स सोचो कि आपको 10 मिनट पहले मालूम चले कि 17 कोर्टों में कैसे कोर्ट्स टेक अप इन मैटर, और आप अपने केस को, अपने पूरे शेड्यूल को कैसे प्लान करोगे, तो वो बहुत ही बड़ी दिक्कत है। तो ये भी हम एक एड्रेस करना चाहेंगे कि सीक्वेंसिंग हो एक शाम पहले, या जैसे बाय 9 o'clock हमें रात को मालूम चल जाए कि हर बोर्ड का ये सीक्वेंसिंग होगा, ताकि हम अपनी प्लानिंग कर सकें। आप खुद भी आगे करो या आप सीनियर इंगेज करो, बहुत कुछ ही वाया हो जाता है कि मतलब हम यहाँ जाए कि वहां जाए, क्लैश भी होगा। तो इन सब चीजों को एड्रेस करने का सोचा है, अब आगे देखते हैं कि कैसे हम लोग जैसे हम लोग दिल्ली हाईकोर्ट में भी हम लोग को पता चल जाता है कि सप्लीमेंट्री आ गई है, तो एक सप्लीमेंट्री, 2 सप्लीमेंट्री, 3 सप्लीमेंट्री, तो हमें इफेक्टिव आइटम वहां से पता चल सकता है, क्योंकि सीक्वेंस लेंगे, या फिर किसी कुछ जजेस ऐसे हैं जो उन्होंने अपना चेंज कर दिया है कि वो एडवांस की बेल्स लेंगे पहले, सप्लीमेंट्री लेंगे, तो उन्होंने बट उसमें भी बहुत प्रॉब्लम हुई, बहुत लॉयर्स वर नॉट प्रेजेंट क्योंकि उन्हें पता नहीं था उस चीज का, जबकि नोटिफिकेशन इज ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ द कॉज लिस्ट जो पब्लिश होती है, बट फिर भी बहुत लॉयर्स नहीं, तो अब द जज हैज टू वेट, नाउ द टाइम इज बीइंग वेस्टेड ऑफ द कोर्ट, क्योंकि लॉयर इज नॉट देयर, अब नाउ दैट कैन नॉट बी, नो ऑर्डर्स कैन बी पास बिकॉज this is a new process. There's a process in 29 other courts and this is the single. पर आपको सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में ये एक मालूम है कि सप्लीमेंट्री और एडवांस बात हर जगह का अलग अलग प्रोसेस है जी सर। और जो जजों ने चेंज भी किया उन्होंने पहले ही आपको बता दिया। सुप्रीम कोर्ट में ये नहीं हो रहा। सुप्रीम कोर्ट में 10, 20, 10, 22, 10, 25 तक मालूम चलता है कि 10:30 से कैसे कोर्ट बैठेंगे, विच इज वेरी डिफिकल्ट कि आप कैसे इसको हैंडल करने वाले हैं। क्योंकि अगर आपने सोचा आपने सोचा कि एक कोर्ट में मेरा 50 है, दूसरे कोर्ट में मेरा 30 है, तो टाइम है, पर अब क्या है, उसने बोला कि नहीं 50 में पहले लूंगा, उसने कहा 30 में पहले लूंगा, तो आपका सारा क्लैश हो गया। अब आप कहाँ जाओगे? तो अगर ये चीज मुझे पहले मालूम चल जाए तो मैं उसके अकॉर्डिंग मैं 5 मिनट में कितनी प्लानिंग कर पाऊंगा कि मुझे कहाँ, और कोर्ट 1 यहाँ है तो कोर्ट 15 दूसरी तरफ है, कोर्ट 6 और अलग है। सो वी ये चीज ऑनरेबल जज को भी देखना पड़ेगा कि हम वहाँ पर हम इस इशू को डिस्कस करना चाहिए, अभी भी कर रहे हो ये लोग जो एसोसिएशन में है, तो अगर सॉर्ट आउट हो जाए तो रास्ता निकल सकता है। तो एक और चीज भी है जो मैंने देखी है, मतलब इन लास्ट फ्यू डेज, कि जजेस का रोस्टर चेंज हो जाता है या स्पेशल बेंच कॉन्स्टिट्यूट हो जाती है, तो उसकी नोटिफिकेशन सुबह आती है। वो बहुत रहती है जब जजेस कोई इमीडिएटली छुट्टी पे जा रहे हैं, स्पेशल बेंचेस फॉर्मुलेट हो जाती है, तो फिर वो पुरानी कुछ स्पेशल बेंचेस ऐसे फॉर्मुलेट होती है जो सुबह 10:30 पर वो रेयरिटी है, वो है कि हाँ वो केसेस, वो स्पेशल कोर्ट फॉर्म होती है या क्या होती है, वो होता है स्पेशल सिचुएशन, इट इज नॉट एवरीडे सिचुएशन। सीक्वेंसिंग एवरीडे सिचुएशन बन गया है, तो एवरीडे प्रॉब्लम ज्यादा डिफिकल्ट वो है कि ठीक है एक बार मान लीजिए कि चलो कोई जज छुट्टी पे है तो चेंबर जजेस की लिस्ट निकल गई कि काम हो रहा है, तो उसमें भी वो अकोमोडेट करते हैं। सीक्वेंसिंग में अकोमोडेशन बड़ा मुश्किल है, हाँ पासवर्ड लो, फिर वो मैटर कब आएगा वापस से सारा टेकअप करना, तो थोड़ा डिफिकल्टी है। तो हाँ, या फिर एक ही बार वो सारी लिस्ट निकाल दें और सीक्वेंसिंग का वो छोड़ दें, या सीक्वेंसिंग अगर है तो हमें पहले इन्फॉर्मेशन, मतलब उसका या तो रजिस्ट्री को ऐसा प्रोसेस निकाले 9 बजे 10 बजे रात को भी मालूम चल जाए तो लोग अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। बिकॉज क्योंकि एक और चीज है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में भी एक सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि सारे जजेस सारे केसेस सुनते हैं, बिकॉज एक कॉन्स्टिट्यूशन ये सर, इस पे थोड़ा आप अगर
बता सकें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता है, उनको लगता है कि बेल मैटर ये जब सुनता है नहीं। उस थोड़ा आप इस चीज के बारे में भी लोगों को बताएं बिकॉज कि सुप्रीम कोर्ट अगेन इज अ कोर्ट ऑफ लॉ, जी सो उसमें कोई वो नहीं होता कि ये रोस्टर जज है और ऐसे बैठेंगे। सारे जजेस सारे मैटर इसलिए भी सुनते हैं कि वी आर बिफोर द सुप्रीम कोर्ट इन एन एसएलपी या रिट अपील में, रिट्स में। तो इट इज नॉट कि हमको फैक्ट समझाने कि भैया सिविल का ये है, क्रिमिनल का ये है, वो नहीं है। तो हम जो लॉ ऑनर एंड एवरी जज इज फेमिलियर विद लॉ, सो दे हैव, दैट्स द वे सुप्रीम कोर्ट फंक्शंस। एवरी कोर्ट विल हियर एवरी, मैटर। अगर 5 कोर्ट में सारे कोर्टों में बेल भी लगेगी तो सारे कोर्टों में अपील्स भी लगेगी, तो सारी कोर्टों में सिविल एसएसपीज भी लगेगी, विच इज अ गुड प्रैक्टिस। मतलब देन यू नो कि किसी जज के पास कोई भी केस जा सकता है। आपके पास ये फिक्स नहीं कि जैसे हाईकोर्ट में रोस्टर है कि ये इन जजेस में वॉन्ट्स का रोस्टर इस जज के पास जाएगा, तो यू नो विच जज टू। यहाँ पे कि आपका केस कोर्ट 1 में भी लग सकता है, आपका केस कोर्ट 17 में भी लग सकता है, कोर्ट 15 में भी लग सकता है, which is all, but that's fine because the judges are all very learned judges. They have vast experience, so it's always good to have a different bench. बिकॉज ये बहुत लोगों के दिमाग में बहुत परसेप्शन है कि उन लोगों को लगता है कि ये जज यही जज सारे केसेस सुनते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता, जो सुप्रीम कोर्ट नहीं आए कभी या जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस नहीं की, तो उनको सुप्रीम कोर्ट एक बहुत बड़ा, उनको बहुत फियर होता है। जबकि सबसे ज्यादा, मैं अभी रिसेंटली कोर्ट में था और एक यंग एडवोकेट वो आर्ग्यू कर रहा था, तो कोर्ट ने उसको बताया कि ये पॉइंट्स है, इस पे आर्ग्यूमेंट करना है, और वो नहीं कर पाया उस टाइम पे, शायद वो इतना वेल प्रिपेयर्ड नहीं था या उसको हेजिटेशन हो गया, जो कि बहुत जेन्युइन है। मतलब अगर मैं फर्स्ट ईयर लॉयर हूँ और फर्स्ट ईयर में मैं सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ नोटिस कराने के लिए, या मतलब मैं सिर्फ इसलिए पास ओवर के लिए खड़ा हूँ, और मुझे तो बहुत बार गलती हो जाती है कि फाइल नहीं पढ़ के जाते हैं, और जजेस उस दिन जज ने पूरा उनको एक्सप्लेन किया कि ये है, और जज ने डेट दी कि आप इस डेट पे यू विल कम प्रिपेयर। तो उससे दो ही चीज होंगी, वो या तो इंसान वो आप उसके लिए उसको पॉजिटिवली लेके उसको उस चीज से सीख के और आना चाहिए नेक्स्ट डेट पे, और बिल्कुल अच्छे से प्रेजेंट करना चाहिए। तो मैंने ये देखा है कि सुप्रीम कोर्ट भी अब बहुत ज्यादा मोटिवेट कर रही है यंग लॉयर्स को, और कि आप आए। और मैंने मोस्टली जो सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज और इम्प्रोवाइज करी है कि उन्होंने रिसेंट कुछ जजमेंट में ये बोला है कि आप रिसेंट कुछ इंसिडेंट ऐसे हैं जिसमें उन्होंने ये बोला है कि आप एओआरस का प्रेजेंट होना मैंडेटरी है। सर उस वो क्यों, ऐसा क्यों, मतलब बिकॉज मेरे को लगता है कि जो फाइल्स बनती हैं वो एओआर बनाता है। नहीं, बीच में क्या होने लगा था कि एवर बस साइन कर रहे हैं जी फाइलिंग कहीं और से होती, नो नाउ में वो साइन कर रहे थे, जो भी हो कि जानता हूँ उसने बना दिया, हमने साइन कर दिया, देन दी वो एवर्स कभी प्रेजेंट ही नहीं होते थे कोर्ट। अगर मैटर कॉल हो तो जिस लॉयर ने साइन किया वो पेश हो रहा है, उसका कोई सीनियर पेश हो रहा है। एवर्स एवर्स बने ही इसलिए है कि यू आर अकाउंटेबल टू द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जज ने आपको एवर इसलिए बनाया, नहीं तो वो तो नॉर्मल प्रैक्टिस है कि वकील बने और आप फाइल कर प्रैक्टिस में आ जाओ, फाइल करो। अगर आप एवर बने हो तो एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एग्जाम भी दिया। आपने एग्जाम दिया है, सब कुछ किया, आपको सुप्रीम कोर्ट से एक सर्टिफिकेट मिला है recognizing you as an advocate on record for your exceptional performance in the examination। तो आपको, अगर आप अपने ही केस में नहीं प्रेजेंट है, बिकॉज जिस पर्सन ने आपसे साइन कराया वो तो उसके अथॉरिटी भी नहीं है। अथॉरिटी किसकी है? आपकी। यू आर द वन जिसको ये डिसाइड करना है कि मैं किसको लेके जाऊंगा कहाँ, और आप अपने ही केस में नहीं प्रेजेंट होंगे। और ये ट्रेंड चलने लगा था, और फाइलिंग में भी बहुत सारी पिटिशन जो ड्राफ्टिंग होती थी उसमें गड़बड़ी हो रही थी। इसलिए ऑनरेबल कोर्ट से एक राइट डिसीजन लिया है दैट एवर्स हैव टू बी प्रेजेंट टू बी आंसरेबल। नहीं आओगे, कोर्टिंग में नहीं रहेंगे, तो फिर एवर तो कोई फेस नहीं पता चलेगा। एंड एवर्स मतलब एक आपके लिए ऑनर है, तो अगर आप कोर्ट में नहीं है अपने मैटर से, तो वो तो एक सीरियस वो हो जाएगा प्रैक्टिस। बिकॉज वो जो जो मतलब अगर किसी ने कोई चीज बनाई है तो उससे अच्छा उस चीज को कोई प्रेजेंट नहीं कर सकता है। बट अब क्योंकि सीनियर एडवोकेट का एक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वो लोग भी, उनकी भी नॉलेज बहुत वास्ट है, इसलिए हम सीनियर्स को लेके जाते हैं, सीनियर्स को ब्रीफ करते हैं। क्योंकि मैंने भी जितनी प्रैक्टिस देखी है उसमें जनरली सीनियर एडवोकेट्स को ब्रीफ करने के लिए एक एओआर ही होता है, और वो स्पेसिफिक अगर मैं भी ब्रीफ करने जाऊंगा किसी सीनियर को फॉर अ सुप्रीम कोर्ट मैटर, तो वो मुझसे ज्यादा एओआर से बात करेंगे। मतलब अगर आप मेरे एओआर है तो आपसे, क्योंकि उनको पता है कि आपने केस बनाया है, और वो लोग क्योंकि इतने साल प्रैक्टिस में उनको पता है स्पेसिफिक क्या क्वेश्चन पूछने हैं, अगर ये केस है तो उसमें स्पेसिफिक क्या क्वेश्चन, तो उनकी मतलब भाई मैंने बहुत सारे सीनियर्स को ब्रीफ किया, और वो लोग इतनी
मतलब जो फाइल हमने मतलब कि कितने दिन कितने महीने लगा के वो मेहनत करके बनाई, वो 15-20 मिनट में वो फाइल में वो आपको क्रक्स बता देंगे। बिल्कुल, that's और why they are seniors. हाँ, और वही वही चीज है, और उसी की वजह से वो लोग इसीलिए हमसे सवाल ना पूछ के योगा से पूछते कि भैया ये चीज कहाँ लिखी है इसमें। क्योंकि एआर रेगुलरली एक बार प्रैक्टिस कर रहे हैं ना सुप्रीम हाँ। कोर्ट, उन्होंने फैक्ट्स, आगे मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट में फैक्ट्स की बातें बहुत बात ही लॉ की होती है। बातें ज्यादा होगी, हाँ और लॉ के बारे में एक सीनियर से अच्छा कोई जानता जी। नहीं, क्योंकि दे हैव वास्ट नॉलेज। एंड ये वाज क्योंकि वो डेली अगर वो प्रैक्टिस में, तो उनको मालूम है कि सीनियर को क्या चाहिए, जज को जज को क्या चाहिए। एंड ऑनरेबल जजेस लाइक द सच काइंड ऑफ सबमिशंस कि आप प्रिसाइज रहो, हाँ। टू द पॉइंट रहो, और लॉ वांट्स टू डिस्कस कर, rather than going and beating around the bush, वो ज्यादा बेटर चीज होती है। तो जब मैं यूआर नहीं था, तो मैं भी होते थे यूआर उनसे साइन कर रहा था। मेरे उस समय मेरे यूआर होते थे शैलेश मलिया, अब वो सीनियर बन गए हैं, तो दैट्स एन ऑनर कि मैं उनके अंडर में भी था। तो जब मैं उनसे साइन करता तो मुझे हमेशा बोलते थे कि जब केस होगा तो मैं भी प्रेजेंट होगा और आप भी प्रेजेंट रहेंगे, सो दैट यू नो द क्लाइंट, ही हैज ड्राफ्टेड इट, I have taken his help in drafting and filing. He should know the brief, I should know the brief, and we both should be present in court. तो वो एक असिस्ट करके। असिस्ट करने के लिए, क्यों? क्योंकि आप केस हाई कोर्ट में लड़े, आपने सुप्रीम कोर्ट में उनको केस दिया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में उस केस को बनाया, उस केस को फाइल किया, आपको दिखाया, आपने कहा कि हाँ ओके है, तो जब आप केस में जाते हैं तो सीनियर के लिए डबल हेल्प हो जाता है। हाँ। कि एक बार ने भी पूरी तैयारी की और कोर्ट के लिए डिस्कस किया और फैक्ट्स पे भी किया और कोर्ट के लिए भी जी। तो नॉट ओनली दी एक बार, अगर किसी ने उनको केस उनसे हेल्प ली है तो उनको भी प्रेजेंट होना चाहिए। एंड पेश होना सुप्रीम कोर्ट में इज ऑलवेज इट इज ऑलवेज सो एंड व्हेन यू आर आर्ग्यूइंग द मैटर और आप जीतते हो, जीतना हारना तो कुछ होता नहीं, बट अगर आपका केस अच्छे से हो गया और आप फेवरेट ऑर्डर पा गए, तो यू गेट दैट कॉन्फिडेंस एंड दैट बूस्ट। एक ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है जो यंग लॉयर्स हैं उनके लिए, एक सवाल सबसे बड़ा ये भी है कि फेवरेबल ऑर्डर क्या है। कई बार हमारी सेल्फीज डिसमिस हो जाती है, जैसे मतलब मैं आज ही कोर्ट में था, दिल्ली हाई कोर्ट में, तो कोर्ट ने मुझे बोला कि अभी आई कैन नॉट गिव यू दिस ऑर्डर, बट मैं ये आपको ऑप्शन देता हूँ कि आप विड्रॉ कर लो, और आप जब सही टाइम हो, जो कि इंडिकेटिव है, कोर्ट ने इंडिकेट भी कर दिया कि आप चार्ज फ्रेम करा के आ जाओ। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा सवाल है लोगों के दिमाग में कि व्हाट इज द राइट ऑर्डर। तो सर आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट भी एक मैटर में फॉर लेबर अपीयर हुआ था, उसका सेक्शन 10 का इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का केस था, सेक्शन 10 का राइट्स तो क्लोज हो गया था क्योंकि टाइम बार था वो। बट सुप्रीम कोर्ट में जब हम लोग गए थे तो रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला ठीक है, दिस इज टाइम बार, स्टैट्यूटरी प्रोविजन है, तो मैं इसमें आई कैन नॉट गिव यू रिलीफ, but what I can give you is a liberty to approach the forum in reference। तो कहीं ना कहीं क्या वो मेरे लिए जीत होगी? बिल्कुल, इसमें भी जीत होगी। और दूसरा है कि अगर आप सब जगह से हाथ गए जी, आपने एक एसएलपी फाइल की, मैंने भी एक एसएलपी फाइल की, तो जब प्रो बोनो मैटर था, लेबर का था जी, उसको कहीं से कंपनसेशन नहीं मिला था, और कोर्ट ने भी बोल दिया था, हाई कोर्ट ने बोला था, एंड इट वाज जस्टिस मुरलीधर हु सेड दैट यू हैव मिस्ड द बस। I still remember those words that you have missed the bus. So मैं सुप्रीम कोर्ट गया था, सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने पूरा आर्ग्यू किया, एंड तीनों लेबर कोर्ट का, हाई कोर्ट के सारे ऑर्डर्स रिवर्स किए गए, एंड कंपनसेशन वाज ग्रांटेड, every perks that was given to him, everything was granted, and that was a great win for him because like pro bono matter आप कर रहे हो लेबर के लिए, और वो एक आपको होता है कि वो फेवरेट ऑर्डर है, नोटिस स्टे जो मिलता है हमें इंटरव्यू में, वो भी फेवरेट ऑर्डर था कि हमने मेहनत की तो हमें उसका रिजल्ट मिल रहा है। क्योंकि हम सब कुछ मिल जाए ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि लॉ बहुत कभी कोई ना कोई तो जीतेगा, या तो मैं जीतूंगा या मेरे सामने वाला जीतेगा। हारना नहीं होता है कि या फिर आपने केस अच्छे से आर्ग्यू किया और आपको एक अच्छा ऑर्डर मिला, या केस में आपने मेहनत की और आपको ऑर्डर नहीं मिला जैसा आपको चाहिए था। हारना जीतना नहीं होता है। हाँ, कभी आपको ऑर्डर मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, जैसा आप चाहते हैं वो कभी होता है, कभी नहीं होता है। क्योंकि सर सब कुछ सब हर इंसान को मिल जाएगा तो फिर वो पॉसिबल नहीं है। और इसी में जैसे मतलब आपने एक और चीज है सर कि सुप्रीम कोर्ट के सामने किस तरीके की मतलब क्या क्या पिटिशंस फाइल कर सकते हैं आप? तो सुप्रीम कोर्ट के सामने एसएलपी सिविल, एसएलपी क्रिमिनल लाते हैं, जो आप हाई कोर्ट के ऑर्डर्स पे चैलेंज करते हैं, जो भी ऑर्डर्स आप इंटरिम ऑर्डर्स, जनरली इंटरिम ऑर्डर्स भी आजकल चैलेंज होते हैं, मेन ऑर्डर्स चैलेंज होते हैं,
रिट में जैसे आपने एनसीएलटी नहीं में बट सर एसएलपी जैसे आपने बोला तो एसएलपी क्योंकि मतलब मुझे तो पता है बट बहुत सारे लोगों को हाँ बहुत डाउट होता है कि एसएलपी क्या होता है एक्चुअली में। स्पेशली पिटिशन थी, अगर सिविल केस के अगेंस्ट आप ऑर्डर में आते हैं तो आप सिविल एसएलपी फाइल करते जी। हैं, और अगर आप क्रिमिनल केस के किसी ऑर्डर के अगेंस्ट आते हैं हाई कोर्ट से तो आप क्रिमिनल एसएलपी फाइल करते हैं। वो बाइफिकेशन सुप्रीम कोर्ट ने अपने लिए किया हुआ है, क्रिमिनल एसएलपी और सिविल एसएलपी क्या होती है। वैसे सिविल रेट और क्रिमिनल रेट भी होता है जी। ठीक है, तो वो रेट भी होता है कि अगर किसी ऑर्डर से हाई कोर्ट के आपको कुछ इशू है, या जैसे कि एनसीएलटी के ऑर्डर से आपको कुछ इशू, तो आप वहाँ रेट डालते हैं। तो फिर ट्रांसफर पिटिशन आजकल मैट्रिमोनियल केसेस में डालते हैं कि सिविल और क्रिमिनल भी होते हैं, कि अगर डाइवोर्स और नॉर्मल केसेस से करोगे तो सिविल डालोगे, और क्रिमिनल वाले क्रिमिनल डालो। ट्रांसफर पिटिशन से आजकल तो सुप्रीम कोर्ट धारा पड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं वो पता तो वो एडेड वर्जन नहीं है कि क्या कर सकते हैं केसेस बहुत ज्यादा। Transfer petition has become an added word, but and because of the matrimonial dispute that are going on. नहीं क्योंकि अभी अभी I was reading some justice has said this remark कि now we as a court of constitution are not able to do the constitutional work. Only bail matters and matrimonial matters. क्योंकि And that's the sad part. अब मैं अभी रिसेंटली अभी 9 बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुई थी कौन सर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच मतलब ये तो सवाल मैं उनसे पूछ रहा था तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो हर बेंच 2 लोगों की होती है 2 जजेस की होती है 2 जस्टिस बैठते हैं तो व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच क्योंकि बहुत लोगों को ये भी नहीं पता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच होता है जब किसी लॉ पॉइंट को डिस्कस करने के लिए 3 और मोर जजेस, अभी जैसे अभी बहुत रिसेंटली हुआ है कि डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री पे बेंच बैठनी थी, सो देयर वाज अ 9 जजेस बेंच, दैट्स व्हाट वाज द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच एंड इट्स अ रेयरिटी टू हैव अ 9 जजेस बेंच। इससे पहले मेरे ख्याल से 13 तक जा चुका, पर जब से मैं हूँ मुझे लगता है कि पहली बार जब मैंने 9 जजेस बेंच देखा, इट वाज एन ऑनर टू वॉच द एंटायर प्रोसीडिंग्स देयर। ये 9 जजेस बेंच बहुत रेयरिटी, 2 बैठते हैं, चीफ जस्टिस साहब की कोर्ट में 3 बैठते हैं, तो that's a court, that's also a constitution court, but those are functioning in a normal way. किसी लॉ पॉइंट को डिस्कस करने के लिए, किसी डेफिनेशन को, या किसी लीगल इश्यू को, या किसी रेफरेंस को, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस या किसी भी पॉइंट, तब वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो बैठती है, that has to be more than 3, 5, 7, it has to be an odd, even नहीं रह सकता है। उसका रीजन है कि डिसीजन मेकिंग में केशवानंद भारती में जैसे 13 सबसे ज्यादा आज तक मेरे ख्याल से 13 बेंचेस, क्योंकि मैं आई वाज प्रेजेंट जब ये 9 बेंच वाला जो आर्गुमेंट और इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि मतलब आई वाज फीलिंग कि मेरा मैटर है और वो बाकी सारे मैटर्स नहीं हो रहे हैं, तो उस दिन फिर जब आई वाज सिटिंग इन द कोर्ट तो समझ में आया कि व्हाई द डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री इज सो इम्पोर्टेंट कि 9 लोग, क्योंकि सारे सीनियर्स आर्ग्यू कर रहे थे और उस टाइम समझ में आया कि ये क्योंकि इंडिया हैज अ वेरी बिग पॉपुलेशन ऑफ लेबर एंड लेबर में सब आते हैं, लोगों को लगता है कि अगर वो कंपनी में काम कर रहे हैं तो वो लेबर की डेफिनेशन में फॉल नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग जो एमएनसीज में बैठे काम कर रहे हैं वो भी लेबर की डेफिनेशन में फॉल करते हैं, तो वो बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट था उस चीज का, जिसको रियलाइज नहीं किया, सब लोग मजाक बना रहे थे। हिस्ट्री क्या करना है, तो इनिशियल मेरा भी था कि इंडस्ट्री को लेके हम क्यों इतना वो कर रहे हैं, पर जब मैं पढ़ने लगा, मैं रिसर्च करने लगा, या मैं सुन रहा था जो प्रोसीडिंग्स थी, देन आई केम टू नो कि इतना वास्ट है ये डेफिनेशन तो नेवर एंडिंग वाली हुआ था, इसको करना विच वाज अ ग्रेट थिंग। आई थिंक सो जो भी जजमेंट आएगा वो मतलब इट विल बी अ लैंडमार्क जजमेंट, इंडस्ट्रीज को तो लेके तो बहुत बड़ा जज, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों ने आर्ग्यू किया और मतलब बहुत अलग अलग वेराइटी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स भी आए उसमें, और बट लेकिन कई बार मैंने एक चीज और देखी है, अगर सिविल साइड को साइड रख दें तो कहीं ना कहीं क्रिमिनल साइड पे कोर्ट ने बहुत सारे ऐसे डिसीजंस दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि दैट इज जो बहुत हाई कोर्ट ने मिस कर दिया, जो केसेस एक्विटल के केसेस थे वो सुप्रीम कोर्ट, हम लोग बहुत बार ये न्यूज पढ़ते हैं, हम लोग तो रेगुलरली पढ़ते हैं क्योंकि हम लोग एडवोकेट्स हैं, बट आप जनरल अगर पब्लिक के पास भी जाएंगे तो वही देखता है कि 30 साल बाद इंसान जेल से रिहा हुआ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से, तो कहीं ना कहीं उसको एक प्राइड की तरीके देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इतनी विजिलेंट है। उन लोगों को नहीं समझ आता है कि सुप्रीम कोर्ट हर एक पहलू को बहुत ध्यान से देखता है, और फिर वही बात है ना कि ये सब काम लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट का है, हाँ, जो सुप्रीम कोर्ट का है, दैट्स द सैड पार्ट। आपको अच्छा लगे चाहे कुछ भी लगे, बट
30 years या 12 years या 10 years whatever, Supreme Court is not the court for bail and matrimonial issues ना. हाँ. वो बन के रह गए. हाँ. तो एक इशू तो है कि सुप्रीम कोर्ट फिर फंक्शन नहीं कर पा रहा है. बाकी चीजों पे डिसाइड नहीं करता. बहुत सारे रेगुलर मैटर्स है जो आप टेक अप नहीं हो पा रहे हैं. रेफरेंसेस है, रेगुलर मैटर्स है, 90 पेंडिंग केसेस. व्हेन आई हैड joined the profession it was somewhere around 70. अब वो 90 तक पहुंच चुका है. वो बढ़ ही रहा है. We are going towards a lakh. So it's a serious thing. और उसमें भी एवरी डे आप देखो कि मंडे हो, ट्यूसडे हो, फ्राइडे, वेडनेसडे हो, कभी भी हो, 10 ट्रांसफर पिटिशंस हर कोर्ट में लग रहे हैं. वो बना उसके बावजूद और उसमें भी बहुत लंबे लंबे आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं. मतलब जो आप तो शायद सुप्रीम कोर्ट ने रूल बना दिया है कि सीनियर्स नहीं अपीयर होंगे पहले मेंशनिंग के लिए, सिर्फ मेंशनिंग के लिए. तो मेंशनिंग में क्यों सर ऐसा? क्योंकि मेंशनिंग में भी सबको लगता है कि अगर हम चीफ साहब के सामने मेंशनिंग करेंगे तो सीनियर्स लेके जाएंगे, तो थोड़ा प्रभाव पड़ के अलाउ हो जाए. बट कोर्ट इज दिस वे. हम इनकरेज कर रहे हैं यंग लॉयर्स को कि यार आप मेंशनिंग करो. हाँ. मतलब चीफ जस्टिस हैज डन अ वेरी गुड थिंग कि मेंशनिंग में सीनियर्स का नाम आना is a very good thing for at least the fresh lawyers, the new lawyers, young lawyers. And me and you being first generation lawyers, हमारे लिए तो इसे बहुत बड़ा एडवांटेज है. क्योंकि every client who has the money वो बोलेगा वही सीनियर को लेकर मेंशनिंग के लिए. पर कहीं ना कहीं तो हमें भी लगता है कि हम भी कुछ करें. तो हमें, और कभी कभी क्लाइंट बोलता है कि नहीं जी, बिकॉज क्लाइंट तो अपना इंटरेस्ट देखता है. पर मेंशनिंग इज आल्सो नॉट अ स्मॉल थिंग. मेंशनिंग आपको समझाना पड़ेगा जैसे कि क्यों लगना चाहिए. आपको 30 सेकंड में अपने पूरे केस को सम अप करना है. That's the beauty. And how will you do it? That is the art. You have to learn. कि सुप्रीम कोर्ट में आप उस मेंशनिंग में या मिसलेनियस डे पे 30 to 1 मिनट में आप अपने पूरे साल या 2 साल या 5 साल या 10 साल का केस उस 1 मिनट में कैसे सबमिट करके क्या पॉइंट्स होंगे. And that's the beauty. That's why I'm saying the Supreme Court is a totally different point, क्योंकि आपको टाइम कम मिल रहा है फर्स्ट डे पे, फ्रेश डे पे, पर आपको उतने में, और जजेस पढ़ के आ रहे हैं, दे नो ये क्या है. आपको उतने में ही उनको सैटिस्फाई करना है कि आपका केस क्या है, क्या नहीं है, और आप कैसे उसको यूज. So that's a challenge. So you have to prepare daily that day, and for that 1 minute you have to prepare for 5 hours, 6 hours, 7 hours. मतलब ऐसा दिस शुड बी अ मोटिवेशन. अगर मुझे मतलब सर जितने भी मौके मुझे मिले हैं, एंड लकीली मेरा एक रिव्यू शायद अब जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि कितने तरीके के, उसमें एक रिव्यू भी एक मोड ऑफ पिटिशन है जो 99%, क्योंकि जनरली किसी को भी अपनी चीज में, बिकॉज वो बहुत कॉशियसली काम करते हैं. सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऐसा एरर लीव नहीं करती है अपनी पिटिशन और अपने जजमेंट, क्योंकि वो अगर उनको कोई जजमेंट देना है तो दे टेक टाइम. क्योंकि अगर वो कोई नया लॉ बनाना है, बट वो एरर्स और उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, बट उसमें भी ले आते हैं लोग. उसमें भी क्योंकि सीनियर्स उस चीज को, बट द ऑनरेबल जज इज अ फार्म ऑफ शाफर टू नो कि अगर एरर है तो वो एडमिट भी करेंगे, यही कोर्ट में भी आएंगे और डिसमिस करेंगे, तो रिव्यू चेंबर में डिसमिस हो सकता है. सर यही मैं बोल रहा था कि अभी हम लोग एक वही लेबर का ही केस, लेबर लॉ का ही केस सुप्रीम कोर्ट में, एंड I was shocked to see the reaction of the judge. कि जज said कि ये law point of view से आपने समझाया, but you have to explain it in humanitarian grounds also. कि इसमें अगर इनका जो actual compensation है वो कितना है और इस judgment का कितना मिल रहा है, तो उन्होंने उसमें बहुत wide difference था. मतलब at least उनको 1.7 लाख मिल रहा था और 17 lakhs was the amount that they were supposed to get. तो कोर्ट ने बोला नहीं, I'll hear this on in open court. और उन्होंने ओपन कोर्ट हियरिंग के लिए नोटिस इशू किया. क्योंकि जनरली कोर्ट्स आर वेरी शार्प, दे नो कि जजेस ऑनरेबल जजेस आर वेरी शार्प टू नो कि अगर गलती है कुछ गेट तो करेंगे. पर अगेन 90% ऑफ द रिव्यूज और 95% ऑफ द रिव्यूज आर डिसमिस्ड इन चेंबर बिकॉज़ दे आर फाइलिंग. क्योंकि जनरली जजमेंट्स उतनी गलत होती नहीं है, कभी कभार कुछ मतलब एरर आ गया. तो देखिए वो एरर भी इसलिए होता है क्योंकि जो असिस्ट कर रहे हैं, अब अगर मैं कोर्ट को असिस्ट कर रहा हूँ 10 चीजों पे, तो 9 चीजों पे मैं हो सकता है बहुत अच्छा आर्गुमेंट एडवांस कर लूँ, सारे पॉइंट्स कोर्ट के सामने प्रेजेंट कर लेता हूँ, और एक पॉइंट पे मैं मिस करता हूँ. जैसे पीएमएलए में भी बहुत सारी चीजों पे रिव्यू फाइल हुआ, बट सारी चीजों पे कंसिडर नहीं हुआ. उन्होंने लिमिटेड पॉइंट पे रिव्यू अलाउ किया है जो भी कंसिडरेशन में. तो कहीं ना कहीं वो हो सकती है, बिकॉज एवरीवन इज अ ह्यूमन एट लास्ट, और हमारा एज अ लॉयर वी असिस्ट द कोर्ट. You
रिव्यू में ऐसा नहीं है कि उन्होंने ओपन कोड में पहले समझ पाया, उन्होंने अंदर देखा, अंदर देखा। बाकी पटिशन पढ़ी, हाँ। उसके अंदर देखी कि हाँ इसने जो पॉइंट रिव्यू में डाला है वो जेन्युइन है, Genuine। उसके बाद उसको ओपन कोड में हाँ। सो दे आर वेल वर्स्ड विद, ऐसा नहीं कि वो मतलब रिव्यू आया तो हम डिस्कस ही करेंगे, वो देख रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, यानी वो पढ़ रहे हैं, उन्होंने पढ़ा है, उसको देखा है कि हाँ ये एक एरर हो गया हमसे। तो मतलब ड्राफ्टिंग आप कह लो कि ड्राफ्टिंग लेकिन तो सर कैसे सीखे इंसान? ड्राफ्टिंग इज, आपको सबसे पहले ड्राफ्टिंग में सबसे अच्छी चीज करनी होती है कि आपको सिनॉप्सिस बहुत अच्छा होना चाहिए। और वो कैसे? सिनॉप्सिस मतलब अगेन जैसे हमने मैंने कहा कि सालों की मेहनत वो 1 मिनट में आपको आगे करना है, हाँ। वैसे ही वो पूरी कहानी को आपको 3 से 4 पेज में या Maximum। मैक्सिमम 8 पेजेस में आपको पूरी कहानी करनी है, बट द ओपनिंग पैराग्राफ हैज टू बी सच, and this I was taught by my Senior। senior Mr. KVS Rajan when he gave me that commencement certificate. He was in AWAR then, now he's a senior advocate. He gave me that commencement certificate. So when I used to work under him, he used to say the first thing that you have to do is the opening line of the synopsis, opening paragraph. Has to be very very good. मतलब वहां से आप शुरू करो और आपका उस 3, 4, 5, 6 पन्ने में जो सिनॉप्सिस का है उसमें आपकी पूरी कहानी आ जानी चाहिए, क्योंकि जजेस वो जरूर पढ़ते हैं। और सिनॉप्सिस अगर आपने अच्छा बनाया होगा और आपने सारे पॉइंट्स को आपने हले किया, आपको यू डोंट हैव टू बीट अराउंड द बुश कि ये भी हुआ वो भी हुआ, सब कुछ उसमें नहीं डालो, वो जजमेंट में होगा, सब कुछ होगा, वो लिस्ट ऑफ डेट्स एंड इवेंट्स में भी सब कुछ होगा, उसमें आपने सिनॉप्सिस में पूरी कहानी उठी, मेरी कहानी ये है, ये मेरी पिटिशन ये है, अगर वो आपका अच्छा रहा then it's half the battle won, because the honorable judges mostly see the judgment which is in between judgment and the synopsis, so उससे बहुत चीजें क्लियर हो जाती हैं, and then of course they read the files also, but ये दो चीजें utmost important, this is what I was taught, ये दोनों चीजें utmost important होती है कि आपका synopsis बहुत अच्छा हो, बहुत ही अच्छा। अभी सर एक कोर्ट जजमेंट में जज को लिखो, ऑनरेबल जस्टिस को, कि सिनॉप्सिस को लिमिट करना चाहिए, क्योंकि अब 100 पेजेस का भी लोग सिनॉप्सिस एग्जैक्टली वही मैंने कहा ना, तो कि कहीं पूरी भी कहानी 100 पेज वो क्यों पढ़ेंगे, वो तो पूरी पिटिशन होगी, पिटीशन ही सर उससे छोटी होती है। लिमिट करनी चाहिए ना, एंड दैट्स व्हाट आई वाज टॉकिंग, 6-7 पन्ने अगर बहुत बड़ा एसएलपी दिया, मतलब नीचे से लड़ते आ रहे हैं ऊपर, तो आपको यही तो आपकी ब्यूटी ड्राफ्टिंग का, यही तो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपको ड्राफ्टिंग आनी चाहिए, कि आप सब चीजों को इतने में ही। और क्या क्वेश्चन ऑफ लॉ है, और क्या क्वेश्चन ऑफ लॉ, वो तो क्वेश्चन ऑफ लॉ का पूरा लाइन ही है कि वो क्वेश्चन ऑफ लॉ आपने क्या मांगा, वो तो आपकी पिटिशन में ही है, आप सिनॉप्सिस में क्या जजमेंट में कुछ क्या गलत हुआ है और क्या होना था और क्या नहीं होना, वो सब होने पर अगेन इट हैज बीन वेरी वेरी प्रिसाइज। हम स्टार्ट ही करते हैं कि पहले एरर है और फिर ये क्या एरर है, पहले ही लिख दो ना फर्स्ट पैराग्राफ, क्योंकि मैं इट हैज टू बी, क्योंकि मतलब आई वाज सम ऑन वन रिटायर्ड जज फ्रॉम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, वो लेक्चर दे रही थी, तो उन्होंने मतलब वो समझा रही थी हाउ टू प्रेजेंट और ड्राफ्ट, तो उन्होंने यही चीज बोली कि हम अगर फर्स्ट पैराग्राफ में ही अगर आपको कंक्लूजन पढ़ लेंगे कि ये चीज चाहिए आपको, तो फिर उसके बाद हम उस चीज को ढूंढ सकते हैं ना उस सिनॉप्सिस में कि क्यों गलती है। आपने वो बताया कि यहाँ पे ये हुआ इस ऑर्डर में ये हुआ, फिर वो ऑर्डर पढ़ेंगे, ऑर्डर देखेंगे तो आप उसको रिलेट कर पाएंगे। तो आप जितना आसान बनाओगे उतना आपके लिए बेटर है ना, आप 100 बनने का बनाओ, फिर वो ढूंढ लेने कहाँ से क्या है इसमें पैराग्राफ में, वेल यू आर मोर और लेस यू नो अनोइंग द जजेस। सर एक चीज और है, जैसे जजेस की ट्रेनिंग होती है, तो अब क्योंकि यू आर एक स्पेशलाइज्ड इंसान है जो एडवोकेट है, जो कोर्ट को असिस्ट करने के लिए, तो कहीं ना कहीं क्या एवार्स की ट्रेनिंग नहीं होनी चाहिए, जो नए एग्जाम देखिए बन गया मैं एवार, लेकिन फिर भी मुझे बहुत सारी चीजें जो नहीं समझ आई। वही ट्रेनिंग के लिए तो 1 साल का कमिश्नर सर्टिफिकेट है, 1 साल जो आप ट्रेनिंग कर रहे हो वो ट्रेनिंग ही तो कर रहे हो, आप फाइल ही नहीं कर, यू जस्ट लर्निंग अंडर दी एवार कि कैसे आपने ड्राफ्ट करना है, कैसे आपने प्रेजेंट करना है, कैसे आपने फाइल करना है, इसीलिए दैट्स द पर्पस, वो 1 साल की ट्रेनिंग क्यों है, इसीलिए तो है। तभी मैं कहता हूँ कि तभी मैंने आपको पहले बोला कि ये जो ट्रेनिंग है ये सीरियसली लेनी चाहिए आपको, वो 1 साल पूरा एवार के साथ अपने डेडिकेशन, 1 साल में तो सीख सकता है सर, 1 साल में आप एटलीस्ट जान जाओगे कि कैसे होता है, उसके बाद तो सीखने के लिए तो जिंदगी भर सीखना पड़ता है, तो सीखने के लिए because lawyers are meant to learn, we learn every day, be any code कुछ ना कुछ नए सीखने को मिलता है। और सर वो एक अलग ही, मतलब सर अब
मेजरली आपने क्या प्रॉब्लम्स फेस करी है इसके अलावा, मतलब लिस्टिंग और अभी आप क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो? So, being a first generation lawyer सबसे बड़ा फैक्टर है कि आपका एस्टैब्लिशमेंट सबसे बड़ी फैक्टर है कि जी। मैं अब मुझे 19 years हो गए, बट व्हेन आई कम टू दिस प्रोफेशन मुझे कोई मैं किसी को नहीं जानता था, बिकॉज आई एम फ्रॉम बिहार, स्टडीड इन लखनऊ, वेंट टू पुणे, सो नो कनेक्शन विद दिल्ली, हाँ, कोई कनेक्शन ही नहीं था मेरा दिल्ली से। फिर मैं आया, किसी को नहीं जानता मैं, फिर यहाँ आया तो मैं जब मिस्टर सचिन पुरी, गौरव सचिन पुरी जी अभी वाइस प्रेसिडेंट हाँ, हैं दिल्ली ये बार, तो- तो आई माय फर्स्ट जॉब वाज अंडर देम, ओके। आई हैड डन विद देम फॉर 2 years। तो उन्होंने मुझे सारे एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट उन्होंने मुझे पूरा सिखाया कि कैसे काम होता है। आपको मुंशीगिरी भी आना चाहिए, हाँ, आना चाहिए, आपको फाइलिंग भी आना चाहिए, हम्म, आपको ड्राफ्टिंग भी आना चाहिए, आपको प्रेजेंटेशन भी आना चाहिए, आपको प्रिपरेशन भी आना चाहिए। हम्म, And I don't think so we ever left that office before 1 in the night. Any day. हम्म, We used to be there by 9 and we used to leave by 1. So, हाँ, हमने बहुत कुछ सीखा। उसके बाद फिर अब जब बात आई कि किसी सीनियर करने में काम करते हैं, तो मैंने मिस्टर अरुण निगम को ज्वाइन किया। He became a senior in March. I joined in January. He became a senior in March. Then I learned the laws, the nuances of क्योंकि चेंज हो गया वो पूरा कि एक सीनियर एडवोकेट इस तरीके से एक काम फाइलिंग ऑफिस और एक हाँ, सीनियर ऑफिस। सीनियर ऑफिस, तो टोटली डिफरेंट होता है, पर हाँ वो भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि आपको रात को ड्राफ्ट आता होगा और मतलब पिटिशन आती है बस और सुबह आपको आर्ग्यू करना है, तो सीनियर को तो करना ही तैयारी, बहुत हो, उससे ज्यादा जूनियर को भी करनी होती है। उतनी देर में हमको सब कुछ कर देना। Then of course, sir was great. सर कुछ टाइम चेंज होना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से रात को फाइल आती है और अगले दिन नहीं तो ये तो आजकल के बच्चे वगैरह वो तो 8-9 बजे भाग लेते हैं। हम लोग इससे मुझे नहीं याद है कि मैं इससे पहले कभी भी गया हूँ। एटलीस्ट फॉर माई इनिशियल ईयर ऑफ 3 to 4, 5 years मुझे नहीं याद है कि मैं गया नहीं हूँ कभी का, या छुट्टी लियो या फिर हमने कभी ये हुआ कि संडे भी स्किप किया हूँ। हाँ, क्योंकि हम लोगों को ये लगता है मुझे नहीं याद है कि मतलब द फैमिली मतलब मॉम डैड कोई मिलने वगैरह छुट्टियां हुई तो चले गए, नहीं तो होता ही नहीं था कि चलो। तो जब अब आए हो तो फिर प्रॉपरली करना पड़ता, क्योंकि हम लोगों की जैसे मैं भी हूँ, तो बहुत मतलब मैंने बहुत फैमिली फंक्शन छोड़े हैं और बहुत कुछ इस तरीके से मिस करना पड़ा है टू सर्वाइव। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि अगर मैं स्ट्रगल मतलब 16 घंटे 17 घंटे काम नहीं करूंगा या एग्जिस्ट नहीं करूंगा, अब तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे 1-2 दिन भी कोर्ट नहीं जा पाया हूँ, तो मैं लगता हूँ कि कितना टाइम हो गया कोर्ट नहीं गया हूँ। तो वो एक बहुत जो अटैचमेंट और जो आपको रेगुलरली वहां प्रेजेंट होने से, प्लस मैं बहुत कुछ सीखता हूँ एवरी डे। अब जैसे आज भी मैं कोर्ट में था सुबह, तो मैं बैठा हुआ था कोर्ट में, और उसका 2 रीजन होता है। एक तो मैं जज को माइंडसेट को समझता हूँ, तो मैं अपने आर्गुमेंट उस हिसाब से मॉडिफाई कर सकूँ कि अगर रिलीफ गिविंग जज है तो मुझे ज्यादा नहीं बोलना है, मतलब सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड। नो योर जज, हाँ, तो नो योर जज बिफोर यू हैव टू आर्ग्यू द केस। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मैंने देखा है कि जजेस बहुत सारे चीज उनका क्या ओपिनियन है उस चीज को, क्योंकि आपसे पहले हो सकता है बहुत सारे केसेस आए जो उस तरीके के होंगे, 1-2 केस तो हो गई उस तरीके का, क्योंकि हर तरीके के मैटर्स लगते हैं हर जज के सामने। तो वहां से वो चीज सीखी, और प्लस उसके अलावा जो सीनियर आर्ग्यू कर रहा है या आपसे पहले और कोई आर्ग्यू कर रहा है, तो उसकी चीजों को भी सीखो कि वो क्या बोल रहा है। तो बैठ के इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप अगर आपके केसेस नहीं है, जैसा नहीं लगा हाँ एंड यू आर इन द कोर्ट, सो आप कोर्ट रूम के बाहर मत, कोर्ट के अंदर बैठो, हाँ कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। और जैसे हमारे वो मूवी था 3 Idiots में, हर जगह ज्ञान हर जगह बैठ रहा है, तो बस बैठे रहो, किसी भी कोर्ट में बैठो, पर बैठो समथिंग अदर न्यू। कहीं कुछ लड़ाई हो रही, मतलब कोई भी सबमिशन हो रहे हैं, वो आपको कहीं ना कहीं आपके फेवर में या कहीं आपको याद आएगा कि ये सबमिशन वहां दिए गए, तो जजमेंट आया। So that's why I remember. नहीं, वो बहुत चीजें ऐसी चीजें सीखी, क्योंकि हम लोग जैसे एक मुझे 307 में क्वेश्चन फाइल करना था कॉम्प्रोमाइज पे, तो मैं कोर्ट में बैठा हुआ था, तो उस टाइम पे 3 केसेस आ गए 307 के। अब नाउ द जज सेड, जज वाज इशूइंग नोटिस, बट जज सेड कि हाउ कैन दिस बी क्वेश्चन, इस पे आप लॉ लेके आइएगा जब नेक्स्ट। तो मुझे समझ में आ गया कि ये जज मुझसे पूछेगा। तो जब मैं गया था कोर्ट में नोटिस इशू कराने, तो मैं वो लॉ लेके गया था Exactly. कि सर दिस इज द लॉ। तो देन ही इशूड नोटिस कि ये ठीक है, दिस इज द लॉ, बट आई नीड टू एग्जामिन दिस, बट फॉर दैट आई नीड टू हैव द रिप्लाई ऑफ द स्टेट। तो वो चीज धीरे धीरे सीखते 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 बहुत कुछ हम लोग सीख जाते हैं। बट
एक ऑल टुगेदर अलग ही माहौल होता है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि वहां पे बहुत लिमिटेड या कुछ मैटर्स होते हैं जो बहुत एक्सटेंसिव चलते हैं, बट हम उतने दिन में अगर अगर हम बैठे हैं कोर्ट में, अगर हमारा बहुत देर बाद केसेस हो, समझ सकते हैं कि जज क्या सवाल पूछेगा, क्योंकि वो वहां पे सिर्फ दे डोंट केयर अबाउट द फैक्ट्स, क्योंकि फैक्ट्स तो हैव बीन डेल्ड। फर्स्ट अपील में जो कि जनरली हाई कोर्ट में होती है, वो वहां पे डील कर चुके होते हैं, और वहां भी क्वेश्चन ऑफ लॉ पे वो कर चुके हैं। तो सबसे पहला सवाल जो मैंने मोस्टली सुप्रीम कोर्ट में पूछा है कि व्हाट इज एन एरर इन दिस जजमेंट, बिल्कुल क्या you have to start from there ना, because ultimately तुम जिसके अगेंस्ट आ जाते हो, हाँ सबसे बड़ा फैक्टर की प्रॉब्लम क्या है। मैंने तो पढ़ लिया, मुझे तो कुछ नहीं दिखा, आप बताओ। If you are able to satisfy that and the honorable judge is convinced that's half a battle हुआ। क्योंकि क्योंकि हम लोग ये कहते हैं, मतलब जो जो एक सेइंग है एडवोकेट्स के, उसमें कि जज नोज एवरीथिंग बट ही विल वांट टू हियर इट फ्रॉम द एडवोकेट्स, और जो अच्छे से प्रेजेंट कर ले जाएगा वही जीतेगा। एंड यंग लॉयर्स को तो वैसे भी बहुत इनकरेज करते हो हाँ, कि आप जो नए बाकी यंग मैन सुनने को, अब बहस तो करो, आप शुरू तो करो। तो हमें लगता है कि हमें जब हम सुप्रीम कोर्ट के सामने हो, तो हमें स्टार्ट ही इस चीज से करनी चाहिए कि सर ये सारे पैरामीटर्स हैं जो आपकी जो सेट प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ हैं उनके अगेंस्ट है, जो कि हाईकोर्ट ने नहीं कंसिडर करे। तो वो सारी चीजों से शुरू और जजमेंट्स होंगे आपके। हाँ, इस पॉइंट पे आपको ये एक बहुत बड़ा चीज है सर, कि कैसे जजमेंट रिसर्च कि आप कैसे करते थे, या आप कैसे मोटिवेट, आप तो सिर्फ बहुत एडवांस हो गए, एससीसी आ गया है तो बहुत हम लोग को अभी मुझे याद है कि जब मैं था तो हम लोग बुक्स और मैंने पात्रों का ही ढूंढते रहते थे। हाँ, अब तो हो गया कि अब तो बहुत ज्यादा एडवांस हो गया है, तो क्या गूगल करते हैं, और कि हम मुझे याद है कि वो डीएलडी एसएससी लेके बुक्स हम पढ़ते थे कहाँ पे कौन से में क्या पॉइंट्स लिखे हैं पढ़ा हुआ, तो वो भी एक एक्सपीरियंस। और आज की डेट में ठीक है, विद टाइम एवरीथिंग हैज टू बी, बट सर इसमें एक इशू बहुत बार फ्लैग किया है कोर्ट ने, और मतलब अभी रिसेंटली ऑल्सो ये जजमेंट वो है ही नहीं, वो जजमेंट है ही नहीं। एआई से जो जजमेंट जनरेट हो, एआई से तो लोगों को बहुत दूर ही है। मैं कह रहा हूँ कि आप गूगल सर्च करो, बाकी सर्च करो, अगर वो आपको साइटेशन मिल जाए तो आप साइटेशन को बुक में देखो ना। हाँ, मतलब जो ऑफिशियल लॉ वाले साइट्स हैं उसमें जाके देखो, सारी वेबसाइट पे अपलोडेड है, सारी हाईकोर्ट की वेबसाइट पे अपलोडेड है। तो आपने उनके लिए पॉसिबल है कि एआई में बैठ के आप जजमेंट ढूंढ रहे हो, एआई ने कोई जजमेंट दे रही है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इसी चीज पे ये बहुत अभी मैं एक कोर्ट का प्रोसीडिंग देख रहा था, उसमें वो जजमेंट उसी इंसान ने वो जजमेंट दिया है, कोर्ट ने उसको कंसिडर किया है और उस पर डिसीजन दे दिया है। अब वो डिसीजन उसके अगेंस्ट आ गया, तो वो सुप्रीम कोर्ट ये बोलते हुए फाइल की है कि ये जजमेंट तो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी जब मैंने दी थी। तो फर्स्ट मिस्टेक वाज ऑन योर पार्ट। Absolutely. So you should not have done. The court trusted you as an officer of the court. It is the responsibility of the lawyers. हाँ, हम क्या फाइल कर रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं, बिकॉज यू आर फाइलिंग एवरीथिंग एंड एनीथिंग, बट भाई जजेस को तो पढ़ना है ना। हाँ, आप अपना केस तो आप अपने क्लेम का केस कहा पर नहीं, और उसमें उन्होंने जब वो डिस्कस कर रहे थे तो उन्होंने यही चीज बोली कि यू आर एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, तो आई विल ट्रस्ट यू कि जो आप बोल रहे हो सही है। योर रिस्पांसिबिलिटी इज मोर देन एनीथिंग एल्स, बिकॉज यू आर नॉट आल्सो ओनली आंसरेबल टू द क्लाइंट, आप जजेस को भी आंसरेबल, you have double responsibility. Professional ethics also. आप client आपके भरोसे बैठा हुआ है, हाँ, जज आपके भरोसे बैठे हुए हैं, तो आपको तो दोनों तरफ से देखना है, क्योंकि वो हमने देखा, वो जब वो देख रहा था तो वो इतना मुझे ये लगा कि हाउ कैन दिस हैपन, कि एक तो, और जजेस के लिए भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है, जो हाई कोर्ट के जजेस है या जो ट्रायल को जब सो ओवरबर्डन विद वर्क कि उनके पास पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो हर जजमेंट को क्रॉस चेक करे जो आपने पिटिशन में लिखी है, बट वो बहुत डिफिकल्ट है उनके लिए करना, क्योंकि एक दिन में 100 जज 100 पिटिशन सुन रहा है हाई कोर्ट में, जो कि बहुत ही नॉर्मल एवरेज है, और बहुत सारे सुन नहीं पा रहे हैं क्योंकि एक केस में ही इतना टाइम लग जाता है। एंड द प्रोसीजर इज सच कि आप ओपन कोर्ट में ऑर्डर पास कर रहे हैं, तो एवरीथिंग टेक्स टाइम। मैंने कर्नाटका में से मैटर किया था, कर्नाटका हाई कोर्ट में, वहां पे 300 मैटर्स वर हर्ड इन अ डे, एंड मतलब मैं बहुत इम्प्रेस था उन जस्टिस से। वाई? बिकॉज उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिस्टमैटिक वो बना दिया प्रोसेस कि आपका पीएमएलए की हियरिंग्स ऑन ट्यूसडे, डाउरी हियरिंग्स ऑन वेडनेसडे, मतलब तो इतना, तो सारे मैटर्स क्लब हो गए, और ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट के मैटर्स थर्सडे को, तो उन्होंने सारे मैटर्स पढ़ लिए हैं, 300 मैटर्स वो पढ़ के आ रहे हैं, और फिर उन मैटर्स को वो मार्क करते थे।
तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक अपना सेट पैटर्न बना लिया, बट फिर भी 300 मैटर्स. Overburdened इतने हैं ना. In fact, I have also been doing matters in Karnataka High Court. So last year I went to Dharwad High Court for a friend's matter. That the wife had filed a FIR for kidnapping child. तो मुझे मालूम है कि मतलब first call, no dates, nothing. The onward judge was like, आप आर्ग्यू करो. And he argued, and the judgment was passed. It's a reportable judgment, but judgment was passed in my favor, and it was such a beautiful thing to see कि everyone is working. एक पैटर्न है कि अब मैं ये केसेस करूंगा तो वो केसेस कर देगा. हाँ. वो 300 cases have been disposed of, trying to be disposed of at least. Dates बहुत कम मिलती हैं. हाँ. सब में at least एफर्ट है. effort है. वो सबसे बड़ा है. और मैंने एक और चीज देखी सर, दिल्ली हाई कोर्ट में तो जैसे हम लोग रेगुलर कुछ कुछ केसेस ही देखते हैं, मतलब जैसे हम लोग रेगुलरली कुछ कुछ केसेस हैं जो हम आपको देखेंगे. कर्नाटक हाई कोर्ट में 300 मैटर्स में एटलीस्ट 200 वकील अपीयर हुए. Absolutely. तो मतलब वहाँ पे वो डाइवर्सिटी है कि लोगों को केसेस मिल रहे हैं. And plus different benches भी तो हैं उनके. हाँ. So like I have appeared in the Dharwad bench of the हाँ, Karnataka 3 High Court. मैचेस हैं. So it's a court of what, 6 courts only. हाँ. उसमें से एक EV court है, बाकी single Single benches. RFAs, but they are all working. They are working till 5, 5:30, 6. 6 o'clock sir, I was there and मेरी तो फ्लाइट मिस हो जाती है उस दिन में. I was there till 6 o'clock. I was very impressed with the, and I keep going, but I was very impressed with the working of the. They sit at 10 o'clock, sit till 6:30. तो वो एक अलग. I'm disposing of. ऐसा नहीं है कि अगर 3 लिस्ट बनी है, 3 लिस्ट होती हाँ. है, ऐसा 3 लिस्ट का सिस्टम है. हाँ, वहाँ 3 लिस्ट है. अलग system हाँ. है sir. But all the 3 lists are disposed of. And the year है वही real either give date सारी लिस्ट करके ही Short dates, not हाँ. long dates. वो भी है. Come after 10 days, come after 1 week, come after 2 weeks. और हो जाता है. दिन I know, and it's a very impressive thing. मैं बहुत सालों से 2016 से पेश कर रहा हूँ वहाँ पे, and I've seen the work. एंड उसी तरीके से सर सुप्रीम कोर्ट में भी मतलब अब हाँ. वो पेंडेंसी अगर वो थोड़ी कम हो सकती है तो वो बिल्कुल. इसलिए हो सकती है कि एक एफिशिएंट सिस्टम बने. और एफिशिएंसी मेरे ख्याल से सर क्योंकि जो फाइलिंग होती है वो रिवाज होती है. दे हैव टू आई थिंक मतलब वो थोड़ा सा हमें नॉट एवरी हमें केस हैज टू गो टू. I know. पहले I was telling a friend of mine recently that when I had filed my first case in the Supreme Court, it was an anticipatory bill. I still remember very vividly because Justice Chandramouli Prasad was sitting in the bench. So I filed an anticipatory bill. That bill was rejected from Calcutta in December of 2010. I filed the SLP in December of 2011. So 1 year after. डेली. हाँ, डेली तो था ही, मतलब एंटिसिपेटरी बिल भी मैं एक साथ बात कर रहा था. Anyway, that was my first case, so I wanted to see. What I filed was an FIR, the impugned judgment, and the FIR. That's all that I filed because that's the only document that I got from the case. बोला ये FIR है जी, ये जजमेंट है, nothing else. And जो आपने पिटीशन में फाइल की हुई है, मतलब डॉक्यूमेंट के नाम पे ये 3 चीज थी. And me being a first timer, मैं जा रहा था, ये भी है. So when I appeared, Justice Prashad, I was very scared to उसमें डर लगा. सुप्रीम कोर्ट में जा रहे, फाइलिंग कर रहे, फाइलिंग के बाद ऑनरेबल जजेस क्या बोलेंगे. They were so helpful कि उन्होंने बोला कि हाँ सर बहुत गई, मैंने कहा yes my wife got गई. हाँ ठीक है, तो this matter अभी granting me jail protection for the next date of it, and then finally gave me the protection. But वो चेम्बर से लेके कोर्ट तक में जाने में द थॉट कि मैं क्या आर्ग्यू करूंगा, कैसे आर्ग्यू करूंगा, उस समय में डर लगता कि आप हर केस को सुप्रीम कोर्ट नहीं ला सकते. That thing has changed now from my perspective. मुझे लगता है कि वो चीज चेंज हो गई. नहीं अब वो बल्क फाइलिंग हो रही है, सब कुछ फाइलिंग. नहीं अब सिर्फ कोर्ट उसके लिए जजमेंट्स कोर्ट ने बहुत हाई प्रोफाइल केसेस को वापस भेजा है कि आप हाई कोर्ट जाओ पहले. तो वो चेंज हो रहा है कि 34 एंड इनफैक्ट जस्टिस एक दिन रिमार्क बोले थे कि मतलब दिस मैटर ऑफ हेमंत बिश्व शर्मा वाज बीइंग आर्ग्यूड. तो उन्होंने बोला एक दिन मैं स्पेसिफिकली सिर्फ 32 और 226 की डिस्टिंक्शन के लिए रख लेता हूँ. लेट्स हियर इट. And he said कि the more powers are given to High Court for that reason. और High Court के ऊपर भी एक added responsibility आती है कि they should consider things more extensively. लेकिन उनके ऊपर भी overburden है. तुम अगर लॉ पॉइंट देखोगे तो पावर्स सबको दिए गए, मैजिस्ट्रेट को उतनी पावर्स दिए गए हैं,
बट जज ये बोल के डिसमिस कर देता है कि आप हाई कोर्ट चले जाओ। पावर्स तो सबको दिए गए हैं ऐसे हाई कोर्ट ये बोल के डिसमिस कर देता है कि चैलेंज, मतलब मेरे से तो मुंह पे बोल के डिसमिस किया कि आई एम डिसमिसिंग दिस, यू चैलेंज दिस बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, यू हैव दैट पावर। that's the problem. अब क्या करोगे उसमें उससे कुछ कुछ नहीं कर, डिसमिसल ऑर्डर लेके आ गए थे और फिर सुप्रीम कोर्ट। पावर्स की तुमने टॉपिक उठाया तो पावर्स में बोले पावर्स तो सबके पास है. हाँ The machine was उतने powers हैं because he or she has to deal with the entire criminal law or whatever it is, तो सब कुछ उन्हीं के पास है. हाई कोर्ट में भी वही हाल है, हाई कोर्ट भी पूरी पावर है. सुप्रीम कोर्ट हम बस लॉ पॉइंट पे आते हैं, हम भूल नहीं कि हम सुप्रीम कोर्ट बस लॉ पॉइंट पे आते हैं. ये लॉ लीगली से क्या इफेक्ट है ये बताओ. फैक्चुअली नहीं, फैक्चुअली आपने हाई कोर्ट में खत्म हो गया आपका, आप लीगली बताओ. तो वो चीज नहीं हो पाता तो it's a sad part. वही चीज है that, मतलब there's a very big difference. Right. So thank you so much sir कि आप Thank you so much so for having much time, क्योंकि this इस डिस्कशन से बहुत सारे लोगों की बहुत सारे I hope क्लियर होंगे, Sorry, प्लस sorry. क्या क्या प्रॉब्लम्स हो जैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या क्या डिस्टिंक्शन है, वो भी बहुत उनके लिए हेल्पफुल रहेगा. स्पेशली ये लॉयर्स के लिए के अलावा जो जो जनरल पब्लिक है उनके लिए भी एक अंडरस्टैंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या क्या चीजें होती हैं. Absolutely. पूरी कोशिश किया. Let's see क्या होगा. But and it's a problem. But let's see, and thank you for having me here. It was lovely chatting with you. This was my first thing, but it's बिकॉज इंटरेक्शन सर है, इंटरेक्शन initially lovely of take it. क्योंकि सर इंटरेक्शन से बहुत सारी चीजें ऐसी है जो बहुत मैं सारा- सीखता हूँ, प्लस जो मैं सीख रहा हूँ वही मैं चाहता हूँ कि सब लोग सीखें. तो ये इंटरेक्शन सिर्फ इसलिए रिकॉर्ड करके पब्लिश करते हैं ताकि बहुत सारे यंग लॉयर्स है, और मैं जब सीखता तो मैं तो बैठ जाता था सीनियर्स के पास कि जो वो बोल रहे हैं वो अपनी मीटिंग्स में बात कर रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ. सुन इसीलिए रहा हूँ क्योंकि उन्होंने इतने साल एक्सपीरियंस किया ये भी जब है. हमारे समय में नहीं था, but this medium, at least by this media, at least the young lawyers or the first generation lawyers कैन डू इट. can understand कि कैसे करना है, क्या करना है, क्या problems हैं. तो which is a very very good thing, and you've Yes, taken a good initiative for this. थैंक यू सो मच. Thank you so much. Thank you for having me here. थैंक यू.